अरे जाओ तो बुलाए अरे जाओ तो So now today class will start, and good morning to all of you. So in previous class we have discussed the Brewster's law. Brewster's law. So the final result of the Brewster's law is angle of incidence, sum of angle of incidence and sum of angle of refraction is equal to 90 degree. So in this class, means today class, we have to discuss about double refraction or bifurcance. Double refraction or bifurcance. So now suppose if ABCD, if ABCD, this ABCD is a crystal, when a ray of light passing through this crystal, when a ray of light passing through this crystal, it means it is incident at this surface. Inside this surface, inside the crystal, two rays are observed. Means when a ray of light passes from rarer medium to denser medium, rays are refracted. Refracted means inside this crystal there are two rays are observed. One ray which obey the laws of refraction. Laws of refraction means it bends to, if we draw a normal in this incident point of the crystal, then we see that this or a dotted ray, this dotted a ray obey the laws of refraction, means it bends towards the normal. It bends towards the normal. Sorry, it away from the normal. Away from the normal. देखो यहां से दूर ये भाग रहा है, जैसे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर से मीडियम में गया, ग्लास में गया, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये जो सीधा लाइन है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, this dotted line obey the laws of refraction. So this
ray is known as ordinary ray, and one ray, another ray, which does not obey the laws of refraction. Just a minute. One ray means this ray, this straight line. One ray, this does not obey the laws of refraction. This ray is known as extraordinary ray, or it may be written as E ray. Just wait. The whole process is known as double refraction or bifurcation. Again, I will repeat this double refraction. When a ray of light, when a Prakhar Gupta, unmute yourself, Prakhar. When a ray of light is passed through this crystal, which is made of calcite, means calcium carbonate. ABCD is a crystal which is made of calcium carbonate, or it is known as calcite. When a ray of light passes through this calcite crystal, inside this crystal, there are two rays are observed. One ray which obey the laws of refraction. See my cursor. One ray which obey the laws of refraction is known as ordinary ray or O ray, and another ray which does not obey the laws of refraction is known as extraordinary ray or E ray. The whole process is known as double refraction और बाइप्रिजेंस. ABCD एक कैल्साइट क्रिस्टल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है. ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इन किया तो इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर डेंसर मीडियम में ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है. कुछ रे इस कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर में दो तरह का रे हमको दिख रहा है. एक रे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे कर रहा, मान रहा है, इसको बोल रहे हैं ऑर्डिनरी रे और ओ रे. और दूसरा रे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा पार हो रहा है, इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ई रे. पूछता ये 5 नंबर में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द डबल रिफ्रैक्शन. तो सिर्फ यही लाइन को लिखना है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कैल्साइट क्रिस्टल से होकर के पार हो रहा है तो इनसाइड दिस क्रिस्टल के अंदर में दो तरह का रे दिख रहा है. एक रे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स ये बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहां अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल से ये दूर भाग रहा है. तो जो एक रे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहा है उसको ऑर्डिनरी रे बोल रहे हैं, और एक रे जो सीधा पार हो गया ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. होल प्रोसेस को बोलेंगे द होल प्रोसेस इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन और बाइप्रिजेंस. ऑप्टिक्स एक्सिस, ये ऑप्टिक्स एक्सिस यहाँ इसी डायग्राम से अब आएगा. ऑप्टिक्स एक्सिस का डिफिनेशन. इनसाइड दिस क्रिस्टल द ओ रे जस्ट ए मिनट. मुजाहिद आलम, शिवम कुमार रे, सुजीत हेम्ब्रम. Inside the crystal, O ray travel with same velocity in same direction or all the direction. But E ray, here this ray, E ray has different velocity in different direction. ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन O ray सीधा यही लाइन को पकड़ेगा. तो if the incident ray, this incident ray strikes the crystal along a certain path, means ये line, ये along a certain path is called optic axis of this crystal.
तो यहाँ पर हम ऑप्टिक्स एक्सिस किसका बोलेंगे, क्रिस्टल का, तो ये लाइन को बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइन को। ऑप्टिक्स एक्सिस क्या है कि इनसाइड द क्रिस्टल ओ रे ट्रेवल विथ सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी in all direction, but inside the crystal E ray has different velocity in different direction. If the incident ray strikes the crystal along a certain direction, this direction is known as optics axis of the crystal. Optics axis of the crystal, ये पार्ट, यही लाइन है। इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो सर फिर से और एक बार समझा दीजिए ना। फिर से समझाएंगे तो बोलो, नहीं बोलने से फिर तो हम पार हो जाएंगे। जी रंगू कौन है जी? है फिर तुम लोग शेयर कर रहे हो इधर उधर। जी रंगू नाम का कोई है ही नहीं हमारे यहाँ। कल भी एक लड़का इन करना चाह रहा था इसी तरह। Don't share the link. When a ray of light ABCD is a calcite crystal which is made of calcium carbonate. When a ray of light, this ray of light is passed through this calcite crystal, inside this crystal there are two rays are observed. One ray which obey the laws of refraction is known as ordinary ray or E ray, and another ray which does not obey the laws of refraction is known as extraordinary ray or E ray. एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही इन करेगा तो नॉर्मल से ये या रेयर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। रेयर से डेंसर नहीं, नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगा। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया और टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ये ओबे कर रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, डॉटेड लाइन, इसलिए इसको बोले ऑर्डिनरी रे। और एक रे ऑफ लाइट ये सीधा वाला, ये ओबे नहीं कर रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, देखो सीधा पार हो रहा है, इसलिए इसको बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ई रे। पूरा प्रोसेस को बोल रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन और बाइफ्रिजेंस। ऑप्टिक्स एक्सिस इस इनसाइड द क्रिस्टल द ओ रे ट्रेवल विथ same velocity in all the direction, but E ray does not have same velocity in different direction, different velocity in different direction. Inside the crystal, if the incident ray strikes the crystal along a certain direction, this certain direction, so this line is known as optic axis of the crystal. ये जो रे ऑफ लाइट ऑर्डिनरी रे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? हेलो सर केवल सर, हाँ हेलो सर, केवल कैल्साइट क्रिस्टल में ही डबल डिफ्रैक्शन होगा? बताएंगे। हाँ हाँ, कैल्साइट वो जो मेरा ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना रहता है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना रहेगा। इसके बाद आएगा, देखो ये देखो कैल्साइट क्रिस्टल, देख रहे हो ना? यस सर। हम जान रहे थे डाउट होगा, इसीलिए इसको हम जो है इसके बाद लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कैल्साइट क्रिस्टल, दिस कैल्साइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, सर
Hello, sir. Just minute, just. Who can speak? What is your name? अनिकेत सर. हाँ अनिकेत बोलो. सर दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा कि अलग रहेगा सर जब वो स्ट्राइक करेगा? ये एक रे ऑफ लाइट है, दोनों का रे कहां पर हो? दो रे आ ही नहीं रहा. यहां पर तो मेरा सिंगल रे ऑफ लाइट आ रहा, सिंगल रे ऑफ लाइट है ना. जब ये स्ट्राइक किया, ये रेयर मीडियम है, एयर है, एयर. यहाँ डेंसर मीडियम है, ये कांच है. समझ में आ रहा ना? ये मीडियम है, मीडियम. तो एक रे ऑफ लाइट जब मीडियम में जा रहा है, मान लो वाटर में जा रहा है, वाटर में जाएगा तो क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जैसे ही वाटर में इन किया है ना, तो ये बेंड हो रहा कहाँ? टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों बेंड होता है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम में मेरा ज्यादा है. जैसे ही वो डेंसर मीडियम में पानी में घुस रहा है तो वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है? कम हो जाता है. दैट्स व्हाई द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा है तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मेरा कम है. जैसे वो रेयर मीडियम में इन कर गया, ठीक है, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोला जाता है. ये तो हम लोग 12 में पढ़े हैं. इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता है. यहाँ पर वही केस है. ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. ये पार्ट क्रसर को ध्यान दो, एबीसीडी ये मीडियम है, ये मेरा रेयर मीडियम. रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर में गया, डेंसर में जाने के बाद यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो रहा? कम हो जा रहा. यहाँ ज्यादा है और दो तरह का रे इसके अंदर दिखा. अब यहाँ पर जो है दो रे जो दिख रहा है, दोनों का पहले यहाँ पर सेम वेलोसिटी था रे ऑफ लाइट. अब जैसे ही रेयर मीडियम में घुस डेंसर में इन किया तो इन करने के बाद दो तरह का रे दिखा. एक में वेलोसिटी मेरा समान है सभी डायरेक्शन में, और एक रे ऑफ लाइट जिसमें वेलोसिटी मेरा समान नहीं है, असमान है सभी डायरेक्शन में. तो जो रे, जिस रे में वेलोसिटी ऑफ लाइट समान है सभी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रे. और जिसमें असमान है सभी डायरेक्शन में, उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. क्लियर हुआ बात अनिकेत? तो एक ही लाइट में सर दोनों फेनोमेना होगा सर एट ए टाइम? हाँ, ये एक ही लाइट है ना. रे ऑफ लाइट तो मेरा एक है, जैसे इसके अंदर आया मीडियम में तब ये दो तरह का लाइट क्रिएट हो रहा है डेंसर मीडियम. बोलो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में सर टुवर्ड्स द नॉर्मल पे ही वो पाथ ट्रेवल कर रहे हैं ना सर, मतलब सीधे डायरेक्ट, तो उसको वो फेनोमेना होने के टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं बोलेंगे, ये सीधा पार हो रहा है, स्ट्रेट लाइन. इट गो टुवर्ड्स द थ्रू स्ट्रेट लाइन. ये मेरा ऑर्डिनरी रे मेरा टुवर्ड्स द नॉर्मल काम कर रहा है. ऑर्डिनरी रे सिर्फ मेरा टुवर्ड्स द नॉर्मल काम कर रहा है. देखो ना, ये बेंड किया हुआ, बेंड हुआ है. यस सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कैल्साइट क्रिस्टल. ऑर्डिनरी रे. हेलो सर. नाम बोलो, नाम बोलो सर. ऑर्डिनरी रे विवेक कुमार नयन. हाँ नयन बोलो. सर ऑर्डिनरी रे डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा या फिर सेम फिक्स एंगल से सर? अरे बाबू यहाँ देखो ना, अभी एंगल के बारे में बता रहे हैं, देख रहे हो. अभी जो मेरा कैल्साइट क्रिस्टल का वर्ड आया ना, उसमें देखो अभी यह एंगल दिख रहा है ना. अभी इसके बारे में बोलेंगे तब फिर वो क्लियर होगा. ठीक है. हेलो. यस सर. पहले इसको बोल ले दो तो अपने आप समझ जाओगे. चलो अनम्यूट करो. कैल्साइट क्रिस्टल. कैल्साइट क्रिस्टल क्या बोले हैं? इट इज मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड इन नेचर इट मे बी इन फ्री फॉर्म. It has 6 faces. It has 6 faces and they form a parallelogram having angle, a fixed angle है 102 and 78. Both the angle equal to 180 degree. And it has 2 corners, B and H. These 2 corners are known as blunt corners. ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा blunt corner. एक कैल्साइट क्रिस्टल has 2
two corners, one corner, these two corners are known as blunt, both the corners are known as blunt corners. पूछेगा blunt corner क्या है? तो calcite crystal is made up of calcium carbonate and they occur in nature in different forms. It has 6 faces with the angle 102 and 78, and both the angles are fixed. There are 2 corners in this calcite crystal. Both the corners are known as blunt corners. ठीक है, अब फिक्स हो गया एंगल मेरा नारायण। अब यहां पर आओ। यस सर। न्यूमेरिकल के लिए कल जो हम लोग पढ़ाए हैं उसमें देखो I plus R इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ये था मेरा ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ म्यू इक्वल टू 10I, म्यू इक्वल टू 10I से I प्लस R एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, when the angle of incidence on a certain material is 60 degree, means I is equal to 60 degree, the refracted light is completely polarized. Find the angle of refraction for the refractive index for the material, means we have to calculate mu, and also the angle of refraction means R. So in this question already given I is equal to 60 degree. We know that mu is equal to 10I equal to 10 60. In place of I we can write 60 degree. So 10 60 is equal to root 3. Root 3, the value of root 3 is 1.732. So now we have already calculated the refractive index for the material, that is equal to 1.732. Again we have to measure angle of refraction. We know that I plus R is equal to 90 degree. 90 degree. According to Brewster's law, we know that I plus R is equal to 90 degree. In this question, we can calculate the angle of refraction, means R is equal to, we can write 90 degree minus I. The value of I is 60 degree given here. So R is equal to 90 degree minus 60 degree, means 30 degree. ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया सभी का? हेलो, आर स्नेल्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं सर? क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? रुको, हाँ बोलो विवेक, हाँ बोलो नयना। आर, यस, हाँ बोलो। आर स्नेल्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं सर? करके देखना, आ जाएगा सर। म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर से। यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लागू नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमारा ऑलरेडी ये बोल रहा है पोलराइज। देख लो, कंप्लीटली पोलराइज, पोलराइजेशन का ही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को पुट करेंगे। ब्रूस्टर्स लॉ में कंपेयर किया गया था I प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री लाने के लिए, है ना, लेकिन यहाँ चूंकि मेरा I दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा मेजरमेंट करना है, तो इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किए, और ये चूंकि पोलराइजेशन चैप्टर से I प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी से इसको प्रूव करना है ना। अब देखो नेक्स्ट थिंग बहुत ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव क्रिस्टल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल, in this negative crystal, O ray lies inside this E ray. O ray देखो सर्किल में, E ray थोड़ा बेंड है, इधर उधर है, तो O ray lies inside this E ray. The velocity of O ray is same in every direction, but the velocity of E ray is different in different directions. The velocity of E ray is different in different directions. The refractive index of E ray, यहाँ देखो लिखो, the refractive index of E ray is less than the refractive index of O ray.
ये पार्ट को याद रखना है, न्यूमेरिकल इसी के बेस में आएगा। फॉर नेगेटिव क्रिस्टल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ E ray, extraordinary ray, is less than the refractive index of ordinary ray. हम लोग नेगेटिव क्रिस्टल में क्या बोल रहे हैं? ओ रे सरफेस जो है ई रे सरफेस के अंदर होता है। वेलोसिटी ऑफ ओ रे सेम होगा ऑल डायरेक्शन में। ई रे का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा हर एक डायरेक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ई रे इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। याद रखना इस पार्ट को, अभी न्यूमेरिकल में इसको क्लियर करेंगे। पॉजिटिव क्रिस्टल, इन पॉजिटिव क्रिस्टल सेम थिंग, सेम चीज रहेगा। यहाँ क्या है? ई रे अब अंदर में आ गया, ओ रे ई रे सरफेस lies inside the O ray surface. The velocity of E ray is different, but in O ray the velocity of O ray are same in all direction. ये सर्किल में होगा, ये थोड़ा बेंड हुआ कर लिखा गया है मेरा, ये सर्किल में रहेगा O ray, और E ray का वेलोसिटी मेरा डिफरेंट है ऑल डायरेक्शन में, O ray का सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन ओ रे पॉजिटिव क्रिस्टल में। यहाँ क्या है? नेगेटिव सॉरी ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। ई रे मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, ओ रे मीन्स ऑर्डिनरी रे। नेगेटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल, निकोल्सन प्रिज्म, ये छोटा सा न्यूमेरिक ये देगा डिफिनेशन कि निकोल्स प्रिज्म क्या है। तो इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड इन मेनी इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग लाइट। प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग लाइट is measured by many instruments. In that instrument, Nicol prism is attached. Means it is a useful optical device. इसको याद करना है। Used in many instruments for producing and analyzing light. Producing and analyzing light. अभी इसको बाद में हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट, तो इसका डिफिनेशन है ये जो लिखा हुआ है, इट इज ए क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल वेव प्लेट ऑफ डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए यूनि एक्सियल क्रिस्टल cut in a way that the optics axis is parallel to the refracting faces. Quarter wave plate, in this quarter wave plate, if a wavelength, if a ray of light of wavelength lambda is incident normal to the surface, वो डायग्राम को याद करो बाइफर्जेंस का। If a ray of light whose wavelength is lambda is incident normal to the surface, then the phase difference will be equal to pi by 2 or path difference between the O ray and E ray is lambda by 4। इतना होता है जब कोई रे ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ये क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुआ नॉर्मल टू द सरफेस, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है और ओ रे एंड ई रे दोनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 ये होता है। तो इस नेगेटिव क्रिस्टल का केस में हम लोग जानते हैं म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। नेगेटिव क्रिस्टल में देखो म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई, म्यू ई इज लेस देन म्यू ओ, मींस म्यू ओ ज्यादा है ना, बड़ा है म्यू ई से, तो म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। अगर बोल रहे हैं कि क्रिस्टल का थिकनेस, इस क्रिस्टल का थिकनेस, सपोज थिकनेस ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल इज सपोज T, then
path difference between the two component, we can write T into the difference between the refractive index of the O ray and the E ray. The difference between the refractive index of O ray and E ray. Thickness into refractive index of difference of refractive index of both the ray. तो path difference हम लोग जानते हैं, in this quarter wave plate path difference is equal to lambda by 4. ये lambda by 4. Then this equation is equal to lambda by 4, means T into mu naught minus mu E is equal to lambda by 4. Lambda by 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल T is equal to lambda divided by this 4 into mu naught minus mu E. If the crystal is in the form of negative, if it is in the form of positive crystal, then we know that in positive crystal, here positive crystal, mu E is greater than mu O. Mu E is greater than mu O, and if T be the thickness of the crystal, then path difference between the two component we can write thickness into the difference between the refractive index of E ray और O ray. तो T into ज्यादा क्या है, mu E है यहाँ और mu O कम है, तो mu E minus mu O. So in this quarter wave plate we know that the path difference is equal to lambda by 4. Here we can write T mu E minus mu O is equal to lambda by 4. So calculate T is equal to lambda divided by 4 into mu E minus mu O. ये path difference. Sorry, thickness of the crystal. So the formula for negative crystal, thickness of the crystal is equal to lambda divided by 4 mu naught minus mu E. इस पार्ट को याद रखना होगा, पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता है, ये पार्ट याद रखना है. और इन नेगेटिव क्रिस्टल mu E is less than mu O, and in positive crystal mu E is greater than mu O. इसको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे. सिमिलरली इन हाफ वेव प्लेट, पहले क्या था क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट में क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट, this ray of light of wavelength lambda is incident on the surface of the crystal, path phase difference is equal to, in the case of half wave plate, path difference is equal to pi, and phase difference is equal to pi, and path difference is equal to lambda by 2. देखो यहाँ लिखा हुआ phase difference is equal to pi and path difference is equal to lambda by 2. So in this half wave plate, for negative crystal, we know that mu O is greater than mu E, and T be the path difference, T be the thickness of the crystal, then path difference between the two components, T thickness into the refractive index, difference between the refractive index of O ray and E ray. So T into mu naught minus mu. तो हम लोग